Hello and welcome. In the murder of the young woman in Hathras, a member of the scheduled caste, reportedly by upper caste men, the conduct of the Yogi Adityanath government and the UP police in particular seems to be slipping into a worsening cycle. First, the horrific cremation of the young woman in the dead of the night, the curbing of media reportage, barricading the victim's family and even threatening them. Brutal lathi charges against opposition politicians attempting to visit the village of the victim. All this while allowing gatherings of upper caste men. First, this one, what you're watching on your screen, hosted by a former BJP MLA who said that the men accused of the death of the young woman are innocent. गलत ये हुआ कि न बलात्कार हुआ न कोई ऐसी घटना हुई, ये निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, ये गलत है। तो लेकिन मृत्यु तो हुई नहीं, मृत्यु तो हुई लड़की नहीं, इसी के लिए हम भी चाह रहे हैं कि इस मृत्यु का कारण पता लगे। जब तो सीबीआई जांच बताएगी मृत्यु का कारण क्या है। कोविड के टाइम में थोड़ी भीड़ नहीं होनी चाहिए या फिर सेक्शन 144 वाली जो बात है उसके बारे में भाई कहाँ निकल रहे यार, हट जाओ कैमरे। नहीं, सेक्शन 144 का जो विषय है वो पब्लिक प्लेस पे है, न कि किसी के व्यक्तिगत घर में। सरकार कह रही है कि 200 आदमियों की अनुमति है, वही तो है। हाँ, गाइडलाइन जारी हो गई, आप कहाँ हो, कौन सी दुनिया में। Also, the police stood by while allowing another upper caste group who call themselves the Rashtriya Savarna Parishad also gathered to defend the rape and murder accused, and even went on to making open death threats against the SC leader Chandrasekhar Azad. Let's listen. भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की। एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई, पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने की देरी नहीं करेंगे। ये लड़की वो यहाँ से जाएंगे, एक भी बच्चा नहीं आएगा, एक नहीं बदतमीजी करेगा, कोई बदतमीजी एक बदतमीजी कर दे। सर हम इस रास्ते से ससम्मान भाई, हम सब चोर नहीं है, हमें इस चोर की वजह से आना पड़ा है, हम चोर नहीं है। इस चंद्रशेखर की वजह से की वजह से हमें आना पड़ा है। गाड़ी है हमारी, उधर जा मैं तुम्हारे हाथ। Now, the police have booked Azad and 400 others for violating prohibitory orders, for visiting the family and for promising them shelter. So, on one hand, Azad is booked for violating curfew laws, while none of these upper caste men, the protesters that you're seeing on the other side of your screen, have been charged either for violating curfew orders or for making death threats. Moreover, the police are cranking up the conspiracy theory, filing multiple FIRs against political parties, against the opposition, basically the BJP's rivals. The charges are serious. They have charged sedition, conspiracy, hate speech. The FIR say organizations are trying to spread casteist or communal violence. They're saying they are attempting to ruin the image of the government. So they're targeting the BJP's rivals, but they're letting off, quote unquote, the home team. Now, this comes shortly after the Chief Minister himself played the conspiracy card. उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। So basically, everyone is at fault except the Uttar Pradesh Sarkar, which begs the question, who is defaming the Yogi Sarkar? Is it the political protesters or the police themselves, which is playing you videos once again to refresh your memory about how the police showed absolutely no constraints as they brutally lathi charged and attacked those who would come to meet the family and to protest. Okay, joining us tonight on our show, we have with us Ajay Kumar Lallu. He is the president of the Uttar Pradesh Congress Committee. Sunil Bharala, he is a senior BJP leader. Juhi Singh, spokesperson of the Samajwadi Party. And Professor Vimal Thorat, Dalit Mahila Adhikar Manch
कन्वीनर। तो भराला जी, ये हमें समझाइए कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस हद तक आ गई है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो ओपनली अपना कास्ट के हिसाब से मीटिंग रख रहे हैं, उसमें धमकियां दे रहे हैं, मर्डर थ्रेट दे रहे हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारी कार्रवाई दूसरे साइड पे हो रही है। श्रीनिवास जी, पहली बात तो ये है कि सवर्ण समाज के लोग बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये कहना नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बैठक करके वो अपनी बात रख रहे हैं। तो उसको ये कह देना कि किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं, ये तो निराधार बात हो जाएगी। नहीं, बट उन पे तो नहीं, बट सिर्फ सबको अधिकार है, लेकिन अधिकार सिर्फ लगता है कि जो भाजपा के नेता जो सवर्ण समाज के लोगों से मिल बैठ के बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग रख रहे हैं, उन्हीं को छूट दी जा रही है। आपने देखा किस तरह से कोई भी बाकी पार्टी या कोई भी आता है वहां, किस तरह से लाठियों से उनका स्वागत किया जाता है। तो या तो आप लाठी सब पे चलाइए या तो लाठी किसी पे नहीं चलाइए, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि ये इसमें कोई जात पात नहीं होनी चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि इसमें एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जात के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है। ये देखिए कि सवर्ण समाज के लोग खुद कह रहे हैं कि हम सवर्ण समाज के हैं और चंद्रशेखर आजाद को हम फूंक देंगे। आपने सुना? अभी मैंने वो सुना है। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जात पात पर कोई विश्वास नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वो स्पष्ट, आपने अभी उनको सुनवाया भी है और ये सत्य भी है। आपने देखा, आप कह रहे हैं भराला जी, माफ कीजिए मैं दोबारा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कोई जात पात नहीं करती। आप ही के एक्स एमएलए, बीजेपी के जो एक्स एमएलए हैं, उन्होंने खुद सवर्णों का वहां पर इतना बड़ा बैठाई, वो बैठक उन्होंने किया, उसको संबोधित किया। राजवीर पहलवान वो तो ओपनली कह रहे हैं कि ये जो सवर्ण जो हैं, जो इसमें आरोपी हैं, वो हैं, निर्दोष हैं। तो आप लोग तो अपना जो विषय रखा है वो मैंने भी देखा है और हाँ, उस विषय को मैंने देखा है जी। उस विषय पे उनका ये नहीं, उनका दूसरा ये है कि अपना पक्ष उन्होंने ये रखा है कि भाई उसमें जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उस पर वो नहीं आया, उनको बलात्कार के अंदर जेल भेज दिया लेकिन गया। वो आप कह रहे हैं कि जात की राजनीति हो रही है, वो तो कर रहे हैं। नहीं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे नहीं रख रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का वो मंच है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मंच को हो नहीं सकता। तो वो नेता हैं भाजपा के, लेकिन वो अब वो निजी मामला हो गया। उनका जो है रखने का पक्ष जो भी रखा गया वो अपना पक्ष रखा गया। हम बहुत अच्छा, मैं आपको श्रीनिवास जी आपको बताएंगे कि इस पर अननेसेसरी राजनीति का एक केवल प्रोपगंडा है इस समय। आप बताइए कि जब प्रोपेगेंडा आप लोगों ने या न्यूज़ भराला जी मुझे बताइए, विपक्ष के नेताओं ने क्या ये कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। एक सेकंड, क्या प्रोपेगेंडा है जो उस महिला की चिता को रातों रात जला दी गई? उनकी चिता को रातों रात जला दी गई, वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और हम सवर्ण जात के जो लोग हैं जो ओपनली मर्डर थ्रेट दे रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। उन्होंने एक्शन ये लिया कि तत्काल ही अपने एसपी को उन्होंने निलंबित किया, डीएसपी को निलंबित किया, थाना अध्यक्ष को निलंबित किया। उसके उपरांत उन्होंने उस पर एसआईटी बैठाई। मैं आपको भराला जी जांच की संस्तुति कर दी। अब क्या चाहते हैं? मैं एक चीज आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। द होल पैनल, in fact, I want to read out and then I'm going to open it up. This is a statement that has come from a serving IPS officer, very senior IPS officer, Sandeep Tamgadge. Okay, he is a senior IPS officer. He is of a DG rank. He is serving at the moment in Nagaland. He is also a member of the SC community. He is saying, he's put this up on Facebook in reaction to the way the UP administration and police have handled the Hathras horror. He is speaking both as a police officer and a member of the SC community. He is saying if the victim was Savarn, would cops affront dignity of a dead girl? Why did the DM of Hathras behave in a deplorable manner?
What motivated the police to behave in such a brazen manner? Is it because SC/STs are expendable? Is it because officers need to be seen to be correct with political dispensation? Is it to make political bosses happy for better postings? This is an IPS officer saying it who's currently serving in the government of India. तो भराला जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये तो कोई न विपक्ष है, न पक्ष है, न कोई पत्रकार है, ये एक खुद आईपीएस ऑफिसर ओपनली बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। इन अफसर को, मुझे भूल जाइए, किसी को, विपक्ष को भूल जाइए, इन अफसर को आप क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं? देखिए वो उन्होंने अपनी बात रखी है और उनकी संवेदना थी, उन्होंने अपने इस विषय को रखा, ठीक है, मैं उनकी बात पर, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, देखिए सब चीजों को आप देखिए गौर से। जब ये बात उठी एसआईटी जांच के बाद, श्रीनिवास जी मैं 2 मिनट आप मुझे सुनिएगा। नहीं, एसआईटी की तो बात आपने कर दी, ये सब बात इन आईपीएस ऑफिसर को, इनको पूरी जानकारी है, तब भी ये कह रहे हैं कि इतने ब्रेजन तरीके से कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। अच्छा चलिए, मैं आता हूं, आई विल कम बैक टू यू। लेट मी जस्ट गो अक्रॉस टू प्रोफेसर विमल थोरट। प्रोफेसर थोरट, what do you make of now where the story has twisted and turned? Now it seems upper caste men are holding gatherings, issuing death threats, no action against them, but now multiple cases of conspiracy against everybody and also against Chandrasekhar Azad. हाथरस का ये मामला इतना संगीन हो गया है कि पहले तो एक दलित बच्ची पर एक बहुत जघन्य अत्याचार होता है, उसके शव को उसके परिजनों को देने की जगह पुलिस रात के अंधेरे में उसकी शव को जला देते हैं, जिसे अंत्य संस्कार नहीं कहा जा सकता, वो जला दिया जाना ही कहा जा सकता है। ये असम्मान, ये दलित बच्चे के साथ जो असम्मान हुआ है, उसके मूलभूत अधिकारों का जो हनन हुआ है, ये क्या दर्शाता है? But प्रोफेसर थोराट, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस और प्रशासन और राज्य मिलकर नहीं, but प्रोफेसर थोराट, मुझे I just want to ask you one thing, that what you just heard Mr. Bharala say, he said कि yes उन्होंने जलाया, लेकिन we have transferred the police officers. Is that good enough? ये तो केवल आंख में धूल झोंकने वाला खेल होता है पुलिस का, राज्य का, लेकिन उसके जो पुलिस अधिकारी और वहाँ के प्रशासन जो डीएम है, उनके वीडियोज हमने देखे हैं और उनकी ब्रुटैलिटी हमने देखी है। परिवार को किस तरह से उन्होंने धक्का दे देकर गिराया है, माँ को भी धक्का दिया है, जो पीड़िता है उसकी माँ को भी धक्का दिया है, उसके चाचा को पेट में, छाती में लात मारकर गिराया है। ये किस तरह के व्यवहार है? क्या आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तो मानवता का कोई अंग उसमें नहीं होता है? ह्यूमैनिटी का कोई असर? यहाँ ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। तो मैं जिस तरफ जा रहा है, ये समाज को लेकर जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो योग्य सरकार है, समाज को किस तरफ ले जा रहा है? अच्छा, लेट मी आस्क, बच्चे को मरने के बाद भी उसका सम्मान, उसके मूलभूत अधिकारों से उसे वंचित कर दिया है। जी, मैं एक सेकंड, इन्होंने जो कहा है कि पुलिस की कार्रवाई हुई है और ये तमाम, और आपने जो कहा है, आपने जो दिखाया है, अभी जो क्लिप दिखाए हैं कि सवर्ण समुदाय के सभी लोगों को वहाँ पर मीटिंग करने का की परमिशन दी जा रही है। हाँ, ये बात सबसे ज्यादा शॉकिंग है। मीडिया को मैं आता हूँ प्रोफेसर थोराट, मैं आता हूँ आपके पास, बट ये बताइए अजय कुमार लल्लू जी, what do you make of this charge that now Yogi Sarkar is saying this is not our fault, this is the opposition's fault, this is a conspiracy that is being done by political parties like yourselves, like the Congress, to divide and create animosity? सरकार जानबूझकर तथ्यों को छुपाना चाहती है, दूसरा रंग देना चाहती है।
जिस तरह की घटना विभत्स हाथरस की बेटी के साथ हुई है, उसे न्याय क्यों नहीं देना चाहती? पूरा देश आज उस बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। नहीं, लेकिन कांग्रेस जब के वो बारे में इलाज के लिए तड़पती रही। अजय कुमार जी, मैं पूछ रहा हूं कि जो कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए ये सब कर रही है, कांग्रेस जो खत्म हो चुकी है यूपी में, उसी को जिंदा करने के लिए सब कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं अगर बेटी के न्याय के लिए संघर्ष करना गलत है, वो गलती तो हम बार बार करेंगे। अगर किसी बेटी के साथ जिस तरह का अपराध हुआ है, उस अपराध में सरकार लगातार तथ्यों को मोड़ने का प्रयास कर रही है, तो सच तो हम देश के सामने लाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाथरस की ही घटना नहीं, मैं आपको कुछ घटनाओं के तरफ इंगित कराना चाहूंगा। मैं घटनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश में रोज जी नहीं, देखिए रोज 11 रेप की घटनाओं के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अजय कुमार जी, देखिए, रेप और उन घटनाओं के डेटा में चले जाएं तो वो एक अलग किस्सा हो जाता है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये आप अभी कांग्रेस फाइनली जग के उतर आई है मैदान पे, लेकिन आप इतने महीने हफ्तों से इतनी चीजें हो चुकी हैं, माइग्रेंट कांड हो चुका है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, हर चीज हो चुका है, अब जाके क्यों कांग्रेस सामने आई है? तभी तो कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपका तो कोई ये तो उसी की वजह से है। अगर माइग्रेंट्सों का मामला रहा तो आपको याद होगा हम लोग बसें लेकर गए थे, जिसमें मुझे 1 महीने तक सरकार ने जेल भेजा था। आपको याद होगा उस समय भी हम लोगों ने संघर्ष किया था। आपको याद होगा किसानों के विषयों पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन की, जेल भरो आंदोलन तक चला। अच्छा, जहां तक हाथरस की ही बेटी का मामला नहीं, उन्नाव की बेटी का भी मामला आया था तो कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर संघर्ष किया था उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। ओके, चलिए, शाहजहांपुर में भी टाइम से लगे हुए हैं। इनके पूर्व गृह मंत्री का मामला आया था, नाम आया था, उस समय भी हम लोगों ने पदयात्रा किया था और उस समय भी हमें गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया था। जूही सिंह, अच्छा मैं आ रहा हूं, अजय कुमार जी आ रहा हूं। जूही सिंह, एटलीस्ट द कांग्रेस कैन से कि देयर टॉप लीडर्स केम, you know, देर आए, दुरुस्त आए, whatever it is, went and, you know, they took a few lathis. But as far as the Samajwadi Party is concerned, Jui Singh, we don't even know where Akhilesh is. Can you share with us tonight, where is Akhilesh Yadav? Is he even in India? Is he in India? I can share with you that our leaders have been on the spot in Hathras since the day this young lady was No. I'm asking about Akhilesh. I'm asking, where is Akhilesh Yadav? Is he in India? Look, let me answer. If that name is very important for you, that's your perspective. But our leaders, including Atul Pradhan, Dharmendra Yadav, the local leadership, the Jilla Adhyaksh, have been on ground. And here Hathras is a case study because there's been I just want to, I'm just trying to understand, you're deflecting my question. Yeah. It's very important to know where the leader of your political party is on such an important time when the whole state is, you know, completely tense. Such a big issue. Is he, at least if you can answer, is he in the country? Is he in the country? See, again, you are coming to the same catch-22 situation, to go or not to go. The people who are supposed to go have gone there, have stood by the family, have been helping them. And I think... So, he is not in India then? Is it fair to say he's not in India? There's no problem. If he's not in India, you can say that. It's not an issue. I'm really not privy to that information because I'm not that high that I would be in everyday touch with my leader. But I would say one thing, that what has come out on this panel from the BJP is that they support these caste gatherings, as the representative from the BJP is saying that it's perfectly all right for people to gather together and it's their democratic right. And the second thing, I also want to talk about the Chief Minister, because from the 14th there's been an unraveling of events which has shown a complete subversion of justice, and today he comes out and says that there is some sort of a conspiracy against him. So he must be conspiring against himself, because to stop any opposition leaders, big, small, any social organizations, any media from going to Hathras itself, so there's something to hide. Okay, yes. So you didn't categorically answer my question, but I'll take that as a default yes. There are no answers. But I'll come back to you.
भराला साहब ये बताइए कि इसका मतलब ये जूही सिंह जी कह रही हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब जो सवर्ण जात के जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो रेप और मर्डर एक्यूज हैं ये बिल्कुल वो हैं, इनोसेंट हैं, इस बात को आप बीजेपी जस्टिफाई कर रही है। बाकी सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये जस्टिफाइड है। श्रीनिवास जी, मुझे एक बात बताइए और मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से भी। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक मांग पर, जरा सी मांग पर ही और सीबीआई जांच की संस्तुति करती हो, तो आप इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि हमारी संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे? इस घटना को हम चाहते कि क्या है? नहीं, तो आप कह रहे हैं सीबीआई जांच। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं श्रीनिवास जी, याद दोनों बैठे हैं, हमारे विरोधी दल के नेता हैं दोनों। कुन्नौर कांड हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, संभल जिले में 2 लड़कियों को बलात्कार करके पेड़ से लटकाया गया था। अच्छा, इनको जवाब देने दीजिए। जांच तक भी नहीं की गई थी। अच्छा, इनको अजय कुमार जी जवाब दीजिए। अजय कुमार जी, अच्छा अजय कुमार जी को जवाब तो देने दीजिए। आपने सवाल उठाया है। भराला जी एक सेकेंड, अजय कुमार जी जो कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच बिठा दी गई है, अफसरों का ट्रांसफर हो गया है, तो फिर आपको क्या आपत्ति है? दूसरा जो एक सेकंड सुनील जी उनको बोलने दीजिए। सुनील जी दावा कर रही है। सुनील जी एक सेकंड, सुनील जी उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अजय जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये सरकार जो सीबीआई जांच का दावा कर रही है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, 3 सवाल पूछना चाहता हूं। मैनपुरी के नवोदय की बेटी के साथ घटना हुई थी, उसके माँ बाप आज तक सड़क पर मारे फिर रहे, रोज न्याय की आस में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर और लगातार लोगों के बीच में दौड़ रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा था, उस पर भी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। वो सीबीआई जांच कहां है? अच्छा, आप कह रहे हैं पिछले समय में नहीं हो रहे हैं। संजीत यादव अपहरण घटना हुई थी, मैं जरा सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, नहीं पूछ लिया आपने, क्योंकि संजीत यादव जी का अपहरण हुआ था, हत्या हुआ था, उस समय भी इन लोगों ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। अच्छा ठीक है, लास्ट में पूछता हूं, कहां है? ये केवल पूरे मामले को गुमराह करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, परिवार जब लगातार मांग कर रहा है। एक सेकेंड, आखिरी सवाल प्रोफेसर थोराट, आई हैव वेरी लिटिल टाइम। प्रोफेसर थोराट, ये जो पॉलिटिकिंग को अगर छोड़ दिया जाए, इस वक्त क्या मतलब जो हम देख रहे हैं, क्या ये जो एक तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कास्ट टेंशन्स क्या बढ़ रही हैं, या इसी का नतीजा क्या हम देख रहे हैं? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बताती हूँ कि 2017 में यूपी में 5,671 केसेस हुई है यौन हिंसा की। 2018 में 59,445 हुई। और इस घृणास्पद और क्रूरता की जो हदें इस समय हाथरस की बेटी के साथ पार की गई हैं, उसके बाद बुलंदशहर में, आजमगढ़ में, बलरामपुर में नाबालिग बच्चों के साथ फिर बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, एक बच्चे को जिंदा जला दिया गया है। ये क्या दर्शा रहा है? ये यूपी सरकार की अगर इतनी संवेदनशीलता की बात कह रहे हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है, तो इस बच्चे को न्याय दिलाने का जो एक संवैधानिक मार्ग है, जो संवैधानिक कानूनी मार्ग है, उस पर उसमें अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? उन्हें किस चीज का डर लग रहा है? ठीक है, बच्ची से चलिए, संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार छीन लेने के बाद भी इतनी असंवेदनशीलता को, ठीक है, आप कह रही हैं कि अड़ंगा लगाया जा रहा है, और उस पर विश्वास है, तो विश्वसनीय है। अच्छा चलिए, वो जब हमारे पास वक्त कम है, पानी का पानी आ जाएगा, अड़ंगा लगाया जा रहा है इस पर बलात्कार We have to see. Okay, time is up. प्रोफेसर वेवाल, टाइम वक्त खत्म हो गया है। करने के लिए ये प्रोफेसर वेवाल, आपका वक्त खत्म हो गया है, टाइम इज अप फॉर द डिस्कशन, लेकिन आपने अपना पॉइंट रखा है। लेट अस सी if the Uttar Pradesh police and the government changes track. Let us see if that happens. चलिए भराला जी, वक्त खत्म है। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।